What is the grammar? I just answered. When I said, nice answer he has given. Of course, quite correct. There is no wrong at all. Even though everybody on this earth who speaks English, when a speaker starts to speak English, he always at his best. What are those sentences which brings beauty in this sentence? Which brings beauty in the sentence. Jैसे as I say in English, ice on the cake. क्या करते हैं? ice on the cake का मतलब क्या होता है भाई? मैंने केक देखा। नहीं, I saw हाँ, मैंने मुझे आपको क्लास में बताया था। अच्छा, सोने I पर saw सुहागा की क्या होती है? सोने पर सुहागा। Especially I used to tell in every classes where I go to teach. First sentence I say, take the time by forelock. What I said, right? Take the time by forelock. Success is yours. Yeah, take the time by forelock. Success will attend you. इसका मतलब क्या समझे आप? Take the time by forelock. Success is yours. और take the time by forelock. Success will attend you. कहने का मतलब है कि अवसर को ना गवा करके अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं तो सफलता आपकी है या सफलता आपकी पैर छूमेगी. Successfulness will attend you means attend you means सफलता आपकी पैर छूमेगी. सक्सेसफुलनेस विल अटेंड यू का हिंदी क्या होती है? सफलता आपकी पैर चरण चूमेगी. सफलता आपकी पैर छूमेगी. What does successfulness say? It says, no, I am feeling very tired. Please get me in your life. I am feeling too tired and moving behind you. Until unless you are not taking me in life, I cannot take rest. सफलता क्या कर मैं आपके पीछे से कदम थक चुकी हूँ. अब मुझे अपने गोद में ले लीजिए. अदरवाइज हम रेस्ट नहीं पा पाएंगे. ठीक है. तो देखिए इंग्लिश में बड़े अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं. भाई जस्ट आई टोल्ड यू टेक द टाइम बाय फोरलॉक. ध्यान दीजिए. टेक द टाइम बाय फोरलॉक सक्सेसफुलनेस विल अटेंड यू. समझ अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं, समय को न बाई 4 लाख का मतलब क्या हुआ? समय को नहीं गंवाना. बाई 4 लाख का मतलब yours are हो गया. तो व्हाट आई सेड जस्ट नाउ, टेक द टाइम बाय 4 लाख. भाई अच्छा, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सेंटेंस है. टेक द टाइम बाय 4 लाख सक्सेस योर्स. और टेक द टाइम बाय 4 लाख सक्सेसनेस विल अटेंड यू. इसका अर्थ क्या हुआ भाई? सक्सेसफुलनेस विल अटेंड यू मतलब कि सफलता आपकी पैर चूमेगी. यदि आप समय को ना गवाते हुए उसका यदि आप सदुपयोग करते हैं तो सब क्या होगा भाई? सफलता आपकी पैर चूमेगी. मीन्स योर सक्सेसफुलनेस इज योर्स. सक्सेसफुलनेस इज योर्स. राइट? समझा रहा है कि नहीं? तो हम बड़े अच्छी चीज़ आप लोग हम क्लास में हमेशा जब आएंगे तब कहते रहेंगे. आप लोग अच्छी चीज़ें हम बताएंगे. यू कैन टेक डाउन दीज थिंग्स. आप इसको लिख सकते हो. ठीक है. तो देखिए, इफ आई राइट दिस सेंटेंस लाइक दिस,
it right sentence? Is it right sentence? No, sir. Not right sentence at all. So that it is told that whether is the question of placing or fitting or adjusting the words in these sentences until and unless it is not rightly adjusted or placed, it means that the sentence will never give you right answer or right meaning. The sentence will not give never right meaning. That's why it is very essential to know grammar to the teachers and students both. To teachers and students both. Very essential to know it. Yes. That's why decision is made. आप लोग को पूरा आज ग्रामर पर और सेंटेंस पढ़ा आप लोग को हम पढ़ाएंगे। वो कहाँ का मिटाने वाला यहाँ पर रखे थे। व्हाट इज ग्रामर? व्हाट इज ग्रामर? आप लोग देखते भी जाइए, अच्छा रहेगा। ये देखिए, हर चीज काम की होती है। एवरीथिंग इज यूजफुल। एवरीथिंग इज यूजफुल if you know it, even though you take down, if teacher says some new things for you. What is the grammar? Definition number 1. You see, I can take in shortcut also this definition. You can write in shortcut also this definition. हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं भाई? देखिए, जस्ट आई मेड इट इन शॉर्टकट. बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग. Both are having same meaning. Because, that I told you of the adjustment of the word, that it plays very important role in grammar. Very, very important it plays. Until unless the relation is not properly made within the words, it will never strike you, it will never give you exact meaning or right meaning. Right? Right? Number 3 definition is, shortcut है बहुत ये भी. Grammar is a word science of right use of language. देखिए, अब यहाँ पर जो है वर्डों को ऐसे एडजस्ट किया गया है. Here the words are adjusted in such a manner that it gives full meaning. Only words are adjusted in the sentences. अब जब उन्होंने एक दो डिफिनेशन बताया, हम उस डिफिनेशन पर आ रहे हैं. जो उन्होंने डिफिनेशन कहा था उस डिफिनेशन भी आ रहे हैं. कहाँ लिखे?
जैसे नंबर 4 डिफिनेशन इज आई यूज टू मेक माई ओन डिसीजन आल्सो। हम जैसे जैसे अपनी बुक लिख रहे थे वैसे वैसे हमारे एक डिफिनेशन में एक जो है एक क्या बोलते हैं इंस्पायरेशन हमको मिलता गया। Yesterday saying you make your own definition. Yesterday saying you make your own definition. It's better for you. So I have made about 1 or 2 definitions of mine, which I have included in my book also. That is given in the book. Just after some time I will give my introduction also. I forgot to introduce myself you. So correctly use of words. ये बुक की डिफिनेशन है। यूज ऑफ वर्ड्स इन स्पीकिंग और राइटिंग इज known as ग्रामर। हो गई डिफिनेशन। यस सर। जैसा इन्होंने कहा था हमने उसको थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। आप जो बोले हम थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करके जो है उससे हमने इस डिफिनेशन को इस तरह से बना दिया। राइटली इन राइट मैनर गिव द अपॉर्चुनिटी राइट मैनर दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रामर। ग्रामर मेक्स अस what it makes how to use the words in the sentences, how the words should be used in the sentences। टेक डाउन लिख लीजिए आप लोग इसको। बड़ी अच्छी चीज़ आपको हम बता रहे हैं जो कि आई डोंट थिंक इट विल बी टॉट, इट विल बी दिस टाइप ऑफ डिसीजन बी टोल्ड इन टीचर इन द क्लास, राइट। सो करेक्टली यूज ऑफ वर्ड्स इज स्पीकिंग और राइटिंग इज नोन एज ग्रामर। ये भी उसकी एक जो है डिफिनीशन है, राइट। सो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ ग्रामर। इसी पहला है स्टडी और रूल्स ऑफ लैंग्वेज इन फ्लेक्शन ऑफ अदर मीन्स शोइंग द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज वर्ड इज हियर। हमने आई हैव फिट लैंग्वेज वर्ड इन नेक्स्ट इन लास्ट, आई हैव टेकन इट इन लास्ट, एंड वर्ड्स आई हैव टेकन इट इन वर्ड्स, राइट। That I used to say always in the class for the students that you learn how to fit, how to place the words in such a manner in the sentences that it could extract, it strikes or give correct meaning, correct meaning. ठीक है? So, really definitions of grammar. और एक डिफिनेशन है, ये सब आप लोग लिख लिए। ये टेक डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टेकन डाउन, कि झूठो बोल रहे हैं कि हाँ। ये हमने बनाया है अपनी डिफिनेशन ग्रामर की, बड़ा सोच समझ के हमने उसे बनाया है। पांचवा है, ध्यान दीजिएगा सर इस डिसीजन पर, बहुत अच्छी, ये बहुत ही इस डिसीजन पूरा रामनगर में जो है हल्का मचा दी थी। जब लड़के स्टूडेंट के साथ टीचर हमने बोलने लगे तो टीचर चुपचाप जो सुनता रहा, का कौन बताया है रे, नहीं हमको सही इस डिफिनेशन बताए हैं और सब इनकी बनाई हुई डिफिनेशन है। ग्रामर इज द होल सिस्टम एंड structure of language। देखिए इसमें आई हैव टेकन होल ग्रामर, होल इंग्लिश फ्रॉम A to Z,
I have included in this definition whole grammar, whole English has already come in this, right? In this definition, applicable whole grammar or whole. So इस प्रकार like this, I have written 5 definition of grammar for you, right? Yes, sir. उसमें आ जाएगा तो फिर हम बदनाम कर दीजिएगा, ठीक है, राइट? Yes, sir. अब इसके बाद हम आते हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस, आप किस क्लास में हो भाई? विच क्लास डू रीड? आंसर शुड बी इन इंग्लिश। I am in class 9th standard. क्लास 9th स्टैंडर्ड, 9th में हो। बोलो व्हाट इज सेंटेंस? So sentence is the mixture of words which will be used to speaking or writing. बैठ जाइए। व्हाट इज सेंटेंस? आप बोलो व्हाट इज सेंटेंस? क्यों, क्या आपको खराब लग रहा है क्या? कुछ नहीं। नहीं सर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को मतलब यूज करते हैं सेंटेंस। हाँ, वेरी गुड, बैठ जाइए। इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है हिंदी में, मैंने बोला आपसे, नो डाउट एट ऑल। बट व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ बुक? बुक की डिफिनेशन क्या है? Sentence is a group of words which make complete sense. हाँ, बैठ जाइए। थोड़ा सा आइस ऑन द केक कर दीजिए और बढ़िया हो जाएगा। आइस ऑन द केक लगा दीजिए। जैसे उन्होंने क्या कहा भाई? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स, यहाँ दैट भी लिख सकते हैं। आई कैन टेक ऑन दैट आल्सो, बोथ आर करेक्ट। विच मेक्स कंप्लीट सेंस। हम इसमें और क्या जोड़ सकते हैं? और कंप्लीट मीनिंग, और लगा दीजिए। और कंप्लीट मीनिंग, और कंप्लीट मीनिंग हम इसे लगा दिए, इसलिए जो है और संधि के सोने पर सुहागा हो गया। और देखिए आप कंप्लीट सेंस, लगता है कि वी आर लिविंग समथिंग, कुछ छूट रहा है, इट सिर्फ समथिंग इज लेफ्ट, लग रहा है कि नहीं? कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग करेक्ट है, गलत नहीं है यहाँ तक का, एकदम 100% राइट। किंतु आई टोल्ड यू कैन ऑलवेज ट्राई टू add such words that it brings some beauty in the sentences after adding it. It is done by me. It is done by me. और सुंदर लग रहा है कहने में। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स complete sense or complete meaning, right? इसको और हम कैसे लिख सकते हैं भाई? इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? टेल मी। Yes, sir. सेम चीज को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, sentence is a group of words that makes together complete statement. Same thing है दोनों, very minor differences there. Very minor differences. Very minor differences there. ठीक है, समझा रहा है ना? या हम ऐसे भी कह सकते हैं
कि सेंटेंस इज ए complete unit of thought. सेंटेंस इज ए कंप्लीट यूनिट। देख कैसे बनाते जाए डिफिनेशन को अपने समझे वर्डों का। सो सेटिंग फिटिंग ऑफ वर्ड्स, fitting of words or placing of words plays very important role in the English. Until and unless the relation of words are not having properly, it means it is not correct sentence. It is not correct sentence. You have to remember always this thing, कि how to make the relationship between the words in the sentence, that it strikes full or right meaning. Full or right meaning, that is very important. ऐसा लिखिए ये चीज़ें, आपको जब टीचर हो जाओगे, जैसे पढ़ाओगे इस चीज़ों को लेकर के, लड़के बड़े खुश होंगे। ठीक है, मिटा दें। थोड़ा ही पढ़ाना, ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, कहीं कि मोबाइल में नॉट गेम शॉर्टकट पढ़ाइएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाइएगा, ज़्यादा मत पढ़ाइएगा। बोले थे एकदम अच्छी डिसीजन वो है, उसको हम कैसे लिखते हैं बना करके देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। टेक डाउन आल्सो दिस थिंग्स, लिख लीजिए, आपको बहुत बड़ी काम चीज़ आपको बता रहे हैं। चौथी डिफिनेशन है, क्या उन्होंने कहा था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम इसको ग्रामेटिकली एक वर्ड ले रहे हैं। ग्रामेटिकली हमने नया वर्ड जोड़ दिया, ग्रामेटिकली। ग्रामर के अनुसार, ग्रामेटिकली मीन्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर ए सीरीज ऑफ वर्ड। जो बताया था उसको ध्यान दें थोड़ा सा। A series of words, a series of words, a series of words. Series को break should not take place. It is a question of series. Otherwise, meaning may be changed. If a single word is become hither and thither, meaning may be changed. You have to take always in your mind this thing. Don't forget it. Don't forget it. Series of words. ध्यान दीजिए, grammatically a series of words that आप लोग जो कुछ मुंह दबा के हंस रहे हो ना, सब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। जो लड़का देखेगा क्या कहेगा वो। Subject and predicate, right? That contains subject and predicate. That contains दूर हो जाता है, contains अलग हो जा रहा है। That contains subject and predicate. Subject and predicate, right? Is it right? Yes, sir. Grammatically, a series of words, देखिए पूरा सीरीज में होना चाहिए। A series of words that contains, a series of words किस चीज़ का होना चाहिए? इसके साथ क्या होना चाहिए? Subject and predicate. Without subject and predicate, no sentence. It means that without subject and predicate, no sentence. Right? Without subject and predicate, no sentence. Right? Yes, sir. समझा रहा है ना? Subject. Subject and predicate. Without subject, if subject is there, definitely you'll find verb and
object and there maybe some other words, जैसे कि adverb is there or adjective is there, these words may be there. So subject and predicate, आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टर्म में predicate और object के बारे में. You see, I did not find the definition of object in any of the books. I consulted about 8 to 9 books, but I did not find definition of object. But I have. It is with me. I have the definition of object also. पढ़ाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट टर्म में जो है. भाई थोड़ा सा तैयार भी होना पड़ता है ना. टीचिंग इज नॉट सो इजी. इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, राइट? Yes, sir. एक और डिफिनेशन देख लीजिए. हाँ, हो जाएगा. 5वां डिफिनेशन इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं अभी. हाँ, हो गया. सेंटेंस इज ए सेट ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस इज ए सेट ऑफ वर्ड्स दैट्स कंप्लीट. दैट इज ए कंप्लीट. That is complete in itself. That is complete in itself. Covering. क्या कवर करता है सेंटेंस भाई? कवरिंग द स्टेटमेंट्स. और क्या कवर करता है भाई? क्वेश्चंस. UTC लगा दो. Questions, UTC. You see, this is also one definition of sentence. This is the one definition of sentence. कहता है कि word, sentence set of word. देखिए सेंटेंस हमेशा सेटअप वर्ड हमेशा सेटअप रहते हैं. सेट रहता है कि कौन वर्ड कहाँ पर लिखा जाए, कौन वर्ड कहाँ पर लिखा जाए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझा रहे कि नहीं? उसी कहता है कि दैट्स कंप्लीट इन इटसेल्फ. वो स्वयं अपना अर्थ से प्रकट करता है. वो क्या कवर करता है? सेंटेंस, स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट मीन्स Sir, statement means कथन. स्टेटमेंट मीन्स होता है. स्टेटमेंट हम कहते हैं एसर्टिव. आप सुनोगे वर्ड एसर्टिव सेंटेंस. दो वर्ड है, एसर्टिव एंड अफर्मेटिव. अफर्मेटिव का मतलब होता है, अफर्मेटिव मीन्स अफेक्टिव. अफर्मेटिव मीन्स अफेक्टिव एंड एसर्टिव मीन्स statement. Means simple sentence. Simple sentence are divided in two parts, declarative and assertive. The assertive is divided in two parts, affirmative and negative. Affirmative and negative. They are classified in this manner. क्या? Simple sentence. So affirmative, what is difference between assertive and affirmative? Assertive means होता है statement में कि we are something is told about the subject. Something is told about the subject. Subject स्टेटमेंट किया, कुछ उसका वर्णन किया गया, लिखा गया है, दिया गया है. स्टेटमेंट का मतलब होता है कि नहीं होता है ना भाई? यही होता है ना. हाँ, स्टेटमेंट वो सिंपल सेंटेंस में आता है. अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस. बट वी speak affective type of words. You have to speak always. You have to give some emphasis towards your speaking. आपके जो बोलने की towards speaking की आप तरफ जो आप जो रहते हैं, when we are speaking something, it should be effective means affirmative. Affirm means क्या होता है? दृढ़ निश्चय होता है. Affirm means माने कि एग्रेसिव होके बोलने को हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव. क्या बोलते हैं? एग्रेसिव होकर जो, जिससे हम लगे जोर से स्लोप आ जा रहे हैं,
तो जोर से बोल देते अफर्मेटिव, बट व्हेन आई एम टेकिंग एनीथिंग ए वेरी सिंपल मैनर, very gently, that is a simple sentence. That is a assertive sentence. That is a assertive sentence. Very minor difference is between affirmative and assertive. Affirmative and assertive. देखिए, we are very simple things, but teachers are not able to explain these things in the class properly. Why? What lacking is there? What lacking is remaining behind the teacher? Because they do not read in the house. They do not consult books. I am writing a book on grammar. बुक लिख रहे हैं, शायद आप लोग सुने होंगे। आप लोग सुने होंगे, हमारी बुक अभी जो जनवरी फरवरी में पब्लिश हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपको उस बुक में पाइएगा, हम लिखे हैं। ये सब हम डिफरेंसेस आपको बता रहे हैं। These all differences are given in the book. That book is very, very useful for the 6 or 7 years class student also. From 6 to 12th class students. And I have given several new things in this book. आप जब बुक को पढ़ेगा जानिएगा what new things. When I showed this book, the day before yesterday, one of my friend came to my house. He has done PhD in English से PhD किया है. His qualification is PhD in English. इंग्लिश से क्या किए हैं? PhD उन्होंने किया है इंग्लिश से। देखा तो आश्चर्य हो गया, क्या समझा है तो मतलब हाँ हमन करतो कोनो बुके में ना पढ़ी कुछ चीज़ जब देखा मत हुआ तो जिससे भोजपुरिया लैंग्वेज, लेट अस यूज सम भोजपुरिया लैंग्वेज आल्सो, दैट इज वेरी वेरी स्वीट and something very very Latmar also, somebody becomes Latmar also. Yes, sir. It becomes Latmar also. This was language. है कि नहीं? Yes, sir. So, like this is difference between affirmative and assertive sentence. But actually, if you see commonly, if you see common point of view, the difference between assertive affirmative, there is no difference at all, but very minor, I told you, minor difference. When we speak aggressive, when we speak aggressively, it becomes affirmative. If I spoke before you gently, it became assertive sentence. This is the only difference. That's why these two things are kept in the same kind of sentence में जो है assertive और affirmative और declarative लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? assertive और declarative और affirmative. Assertive means to tell something. Assertive means assert, to tell something. To tell something. Assertive, asserts. हम बाद में आपको पढ़ाएंगे to assert, ठीक है? एक काइंड ऑफ सेंटेंस आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है पांचों डिफिनेशन में है कि इन इटसेल्फ मेथड इज कंप्लीट इन इटसेल्फ कवरिंग द स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, हम एक्सक्लेमेशन, इंपरेटिव, ये भी आता है इंपरेटिव, एंड फिफ्थ इज optative. These are the kind of sentence. These are the kind of sentence. बोलो, you tell kind of sentence. Assertive, हाँ? declarative, हाँ? and अभी हम बताए। बैठ जाओ, बैठो। interrogative, imperative, हाँ, very good. और exclamatory,